चलिए होमवर्क बताइए, व्हाट इज द आंसर? होमवर्क सम ग्रॉस प्रॉफिट बोलो 12,000, नेट प्रॉफिट सॉरी 900, बैलेंस शीट 50, आरटीडी वाला पार्ट आया, ऑल एडजस्टमेंट्स, एनी डाउट, एनीवन? all of you draw for two sums, दो सम का ड्रॉ कर लो। उसका नाम पता है कोई भी अच्छा शेक्सपियर तो होगा ना, कुछ काम पूरी यूनिट इतना लॉन्ग वीकेंड मिल जाता है, उसको स्टोरी बुक का दे ना, मेरे को नहीं पता हम लोग कोई भी बना होमवर्क क्लियर? टेक सम नंबर 19, मुझे बताओ what are the adjustments they have done till now? Closing stock, what are the two effects of closing stock? Trading credit and assets. Tell me the two effects of depreciation. Minus from respective assets and P&L debit. Appreciation. Add to respective assets and P&L credit. Outstanding expense. Add to expense and liabilities. Is it clear? आता है क्या adjustment? ठीक. फाइन मारो अभी. क्या चालू है? बंद कर. Prepaid expense. Expense में से minus and assets. Expense में से minus and assets. And income receivable. Tell me the two effects of income receivable. Income receivable. What are the two effects? Income receivable का two effect क्या आएगा? What is income receivable? मिलना बाकी है. Earn किया लेकिन मिलना बाकी है. तो क्या करोगे? Add to income and assets. मिलना बाकी है. What about pre-received income? Income में से minus. Okay, doesn't belong to this year. So income में से minus and liability. Then you have unrecorded sales.
Sales mad and debtors mad. Unrecorded purchase. Purchase is mad and creditors mad. पैसा देना बाकी है, बराबर? Then we saw 4 adjustments of goods lost by fire. क्या करोगे? डायरेक्ट से हटाओ, इनडायरेक्ट में डालो. Goods lost by flood, step safe. Trading credit, P&L. Goods distributed as free samples. Trading credit, P&L debit. वो आपके homework में भी था. Goods given as samples. Then goods withdrawn for personal use. Trading credit and drawings. Trading credit and drawings. Drawings मतलब capital में से minus. And goods lost but insured. Trading credit, P&L debit and claim है तो assets मिलना बाकी है. Recovered है तो bank, claim है तो asset. ये भी लिखा था हमने. और FBD NRDD. FBD NRDD का दो इफेक्ट. एक इफेक्ट इन द फॉर्मूला. What is the formula? To bad debts plus FBD plus NRDD minus ORD and debtors में plus की minus FBD and minus NRD. पहले FBD की पहले NRD. पहले FBD बाद में NRD. चलिए, all of you take sum number 19. ध्यान से देखना. Prepare trading P&L and balance sheet for Sumit Kulkarni from the following trial balance. Opening stock. Tell me, opening stock 19. Opening stock is what? Trading debit, TD, purchase and sales. TD and TC. Returns. Think and tell me which one is which one. Debit वाला कौन सा और credit वाला कौन सा? Debit वाला है sales return. Credit वाला है purchase return. Agree all of you? पक्का पक्का. Debit वाला sales return expense. Credit वाला purchase return. Okay. Sundry debtors and sundry creditors. Assets and liabilities. Wages. TD. Furniture. Asset. Machinery. Asset. Advertisement. फिलहाल P&L डेबिट वो क्या दिख रहा है for 2 years वो प्रीपेड है मतलब we'll do some adjustment. WEF भी है कुछ. Anyone knows full form of WEF? With effect from. With effect from मतलब वहां से स्टार्ट हुआ है एडवर्टाइजमेंट. कैसे करना है बताता हूँ. हिडन एडजस्टमेंट है, करेंगे उसका नोट. सैलरीज P&L डेबिट. Investments, assets. Insurance, P&L debit. Cash in hand, asset. Cash at bank, asset. Demurrage is fine or penalty. P&L debit. Irregular expense. How do you determine an expense whether it goes to P&L or trading? Purchase production वाला trading, non-purchase non-production वाला. Yeah. What is demurrage? Fines या penalties. शिप वाला आपको मारता है लेट विड्रॉल ऑफ गुड्स के लिए. इंपोर्ट करके शिप में पड़ा हुआ है गुड्स 3-4 दिन आपने निकाला ही नहीं घोड़ा में लाए, उसका भाड़ा टूटेगा 3-4 दिन, आपको फाइन मार. That's called demurrage. That's called demurrage. So fine or penalty. So that will go to P&L debit. Commission क्रेडिट में दिया अमाउंट. वेरी गुड. PLC P&L क्रेडिट नजर गया आपका, यही को समझा. कमीशन. रिजर्व फंड. व्हाट इज रिजर्व फंड? This is not RDD. Reserve fund is what? Reserves and surplus. अपना ही प्रॉफिट है. Reserves and surplus अपना प्रॉफिट कहाँ जाएगा? Liability. Internal liability, external. हो सके तो कैपिटल के नीचे दिखाना, जैसे लास्ट में चलता है. Bills payable, liability. RDD. Which RDD is this? ORDD. All of you got this? Why ORDD? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है. कहाँ जाएगा? RDD ORDD. P&L डेबिट में माइनस और डेटर में भी माइनस. नियति ORDD 2 effects और 1 where में माइनस और डेटर से भी माइनस. नहीं पक्का. कैपिटल liability drawings less from capital. Sorted है? आ रहा है ना पक्का? उसको भी हाँ, इसको भी हाँ. मैं मुंडी ला रही हूँ गाय के जैसे. Closing stock at cost price 25,000. Market price was 10% less than the cost price.
तो आपको ज्यादा वाला लेना कि कम वाला प्राइस? कम वाला प्राइस, लेसर प्राइस यहाँ पे कर। तो कॉस्ट प्राइस वाज 25,000, मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो 22,500 लेना है कि 25,000 लेना है? 22,500, 10% लेस हो गया, 2,500 सब्ट्रैक्ट कर दिया, समझा सबको? 22,500 लेना है। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? Trading credit and assets. Depreciate furniture by 20%, machinery by 10%. Depreciation का क्या होगा? Less from assets and expense. But आगे बढ़ो, कुछ तो दिया है। Machinery of 10,000 was purchased on 1/10/09 but remained unrecorded. तो unrecorded purchase on machine है, तो कैश पे assume करना है कि क्रेडिट पे? क्रेडिट। Any purchase, any sale on credit. तो सोचो, मशीन रिकॉर्ड करना भूल, रिकॉर्ड करना रह गया। एंट्री क्या है? क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन की, मशीन टू क्रेडिटर, राइट? तो मशीन डेबिट हो रहा है, तो ऐड टू मशीन एंड क्रेडिटर क्रेडिट हो गया, ऐड टू क्रेडिटर, लायबिलिटी भी बढ़ा, तो ऐड टू मशीन ऐड टू क्रेडिटर। तो अभी आपके पास एक मशीन नहीं है, दो मशीन है। ऊपर देखो कितने की मशीन थी? 30,000। अभी ये वाली भी है 10,000, तो 30 और 10 हो गए 40। तो कैन आई से आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 40,000? 6 months. क्यों? ऐसे ऐसे ध्यान से देखना। 1/10/09 को लिया, so 1st October को लिया है, and when is your year ending? 31st March. So make a small note for machine. आपके पास एक मशीन है कि दो? एक मशीन है M1, वो 30,000 की है, उस पे 10% है ना कि 20%? 30,000 वाले पे कितना महीना लेगा? 12 मंथ। लेकिन M2 आपने कब अक्वायर किया? 1st October 09। So the second machine will charge depreciation not for 12 months, but for 6 months. Did you get it? Hello. Yes, sir. 3,500 is my total depreciation. एक और प्रॉब्लम ऐसा आया था जिसमें सेम चीज दी थी नीचे एडजस्टमेंट में, लेकिन उधर मैंने अलग से रिकॉर्ड नहीं किया, अब भी किया था। ट्रायल बैलेंस में 80 था और नीचे दिया था कि इट इंक्लूड्स 20 का मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/10, उसमें भी ऐसे ही दिया था। देखो सम नंबर 27 सब देखो, sorry, not 27, 14. उसमें भी ऐसा है, बी पॉइंट पढ़ो, वो इंक्लूडेड था, ये अलग से दिया, ठीक है? उसमें क्या दिया था? मशीन इंक्लूड मशीनरी ऑफ 20,000 परचेज ऑन 1/10/09। इधर भी ऐसा ही कुछ है, देखो मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1/10/09 बट रिमेंड अंडर रिकॉर्डेड, दोनों सेम ही है। वो रिकॉर्ड वो इंक्लूड्स दिया है, इंक्लूड्स मतलब ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और अनरिकॉर्डेड मतलब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फर्क समझा? तो ये एडजस्टमेंट है, इसके लिए दो इफेक्ट दिया, अनरिकॉर्डेड ऐड टू मशीन ऐड टू क्रेडिटर, इंक्लूडेड है तो फिर करने की आवश्यकता नहीं है, समझा? उसका टुकड़ा कर दो, फिर डबली मार, उधर टुकड़ा किया था, इधर अलग से किया। अच्छा, मशीन पे दो एडजस्टमेंट्स है, एडिशन भी है, डेप्रिसिएशन भी है। पहले क्या करना? एडिशन, डेप्रिसिएशन ऑलवेज एट द एंड। बढ़िया। वेजेस 500 वर अनपेड एंड इंश्योरेंस वाज प्रीपेड। पहले अनपेड वेजेस मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग। क्या करोगे? ऐड टू वेजेस एंड लायबिलिटीज। इंश्योरेंस प्रीपेड लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड क्रिएट RDD at the rate of 5% on debtors. What is this? NRDD. बहुत बढ़िया। What are the two effects of NRDD? Minus from debtors. And वैसे तो liability है, but presentation के लिए माइनस करना है। And second effect, loss को बढ़ाएगा, बराबर? Goods of 1,400 taken over by Kulkarni for his personal use. Drawings and trading credit. Goods गया तो trading credit. Drawings मतलब क्या करने का? Minus from capital. Drawings से माइनस नहीं किया, कैपिटल से। Commission 200 due but not received. Due but not received मतलब क्या? Receivable. बताइए दो इफेक्ट्स रिसीवेबल।
एक्सीलेंट और कमीशन में ऐड कमीशन में ऐड एंड व्हाट? एसेट एसेट्स। कमीशन में ऐड और एसेट्स। समझ आया? मिलना बाकी है। एडवर्टाइजमेंट का नोट बनाइए। एडवर्टाइज क्या दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ। एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years, लेकिन WEF, व्हाट इज WEF? विथ इफेक्ट फ्रॉम, with effect from 1/1/2010. What do you mean by with effect from? Any idea? Started. It was started from 1/1/10. मतलब the contract or the ad agency thing, or you started running ads from 1st Jan. And when is your year ending? 31st March. So अगर मैंने ये जगह 1st Jan को लिया है, तो 31st March को मेरा साल खत्म हो गया, तो 3 महीने का ही रेंट लेगा ना, जैन फरवरी मार्च, उतना ही एक्सपेंस होना चाहिए साल का। तो वैसे ही अगर आपने एडवर्टाइजमेंट 1st Jan को स्टार्ट किया और साल खत्म हो रहा है 31st मार्च को, तो जैन फरवरी मार्च 3 महीना आपने यूज किया एडवर्टाइजमेंट, तो आइडियली ये साल में कितना पे करना चाहिए था? 3 महीने का ही पे करना चाहिए था, 3 months का ही पे करना चाहिए। पापा के पास तो बहुत ही ज्यादा पैसा है, आपने कितना पे कर दिया? 2 साल का पे कर दिया। 2 साल का पे कर दिया। 2 साल का कितना है? देखो अमाउंट कितना है एडवर्टाइजिंग, 4000। ये 4000 कितने टाइम का पे किया आपने? 2 साल का पे कर दिया। लेकिन वो 2 साल शुरू हो रहे थे 1st Jan 2010 से, और अपना फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म हो रहा है 31st March 2010 को। 3 ही महीने का करना था, कर दिया 2 साल का। तो हमें ढूंढना पड़ेगा 2 साल से 3 महीने का होगा कितना। अच्छा 2 साल का 4000, तो 1 साल का कितना होगा? 2000। तो अगर 1 साल का 2000 तो 3 महीने का कितना होगा? 1/4, मतलब 500। ये काम का नहीं है। 2 साल का अगर 4000 है तो 3 months का 500 है, 24 months का 4000, तो 3 months का कितना? डिवाइड बाय 8। सिंपल। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो थिंक, इज दिस 500 प्रीपेड or 3500 is 3500 is prepaid advertisement. समझा? कैसा? Because you started using advertisement on 1st of January, right? So 1st January 2010, Jan, Feb, March, first 3 months. Only you have used advertisement in the current year. So current year's expense is only for 3 months, but we have paid it for 2 years. So 1 year and 9 months is prepaid. समझा? ऋषा समझा? पक्का? So 3 months का it is current year and prepaid is 3500. Tell me the totals of prepaid advertisement. Minus from advertisement and assets. How much is prepaid? You understood? 500 or 3500? पक्का? पक्का पक्का? सबको समझा? चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ हो गया, ये डॉट्स डाल दीजिए फटाफट। फर्नीचर 1 dot, मशीनरी 1 dot, फर्नीचर 1 dot, मशीनरी, सॉरी 2 dots, फर्नीचर 1, मशीनरी 2। You know 2 dots on machine why? You have to add that unrecorded part and then depreciate it. So furniture 1, machinery 2, creditors 1. Why creditors 1? मशीन का है। wages 1, insurance 1, debtors 1, wages 1, insurance 1, debtors 1, wages, insurance, debtors. Then commission received, commission पे 8 and advertisement 1, commission 1 and advertisement 1. नोट्स कॉपी कर लेना। शुरू करते हैं। सन नंबर 19, स्टार मार्क करना है इसको आपको 20th समय पता चलेगा कि स्टार मार्क करना है। इसका नेक्स्ट समय 20। ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न। चलिए, ओपनिंग स्टॉक 25,000 outer column, is that right? Purchase and sales, trading debit and trading credit. Inner column, returns. Come on, tell me. 2,000 is what and 5,000 is what?
2000 is 2000 is सेल्स रिटर्न, तो ये हो गया 170 का एक और डॉट है ना सेल्स का, नहीं ये 178 हो गया, और परचेज कितना है, परचेज रिटर्न्स आर 5000, तो ये हो गया 125. सेल्स रिटर्न एक्सपेंस तो डेबिट, परचेज रिटर्न इनकम सो क्रेडिट, सिंपल. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स में कितना है, एक डॉट दो डॉट, क्या है पढ़ो, क्या डॉट, 5% NRDDF. हेलो, सो लेस NRDD, वैसे तो लाइबिलिटी है लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ से, 1000 होता है ना, हेलो, 19 हो रहा है, करेक्ट और नो, बराबर 6. क्रेडिटर्स पे डॉट है कि नहीं, है पढ़ो, क्रेडिटर्स पे क्या डॉट है, मशीनरी खरीदा है, तो ऐड करो कि सब्ट्रैक्ट, ऐड अनरिकॉर्डेड मशीनरी, कितने की है, 10 की. ये दिख रहा है नीचे नोट में, एक मशीन थी, दूसरी ये साल खरीदी थी आपने 10,000 की, क्या हुआ बोलो, डाउट है. एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज द सीन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, समझा सबको, एडवर्टाइजमेंट, Sir, wages. Sir, Wages. Oh, sorry. खा गया, wages, any dot Yeah. है, outstanding. आउटस्टैंडिंग है, क्या करने का, ऐड कितना है, Also. आउटर कॉलम 4500. हेलो, हाँ Well. डन, समझा कि नहीं, ये लो, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड किया, फर्नीचर पे डॉट है, क्या है, नहीं है कि नहीं है, है ना यार, appreciation. एप्रिसिएशन कितना टका है, 22. Recorded machine.